Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic of our discussion is advertising. So, as we all know that in daily routine life, we came across with different types of advertisements through different mediums, like through Facebook, through internet, email, etc., websites, television, radio, mobile messages, billboards, newspapers. Through different mediums in daily routine, we are exposed to different types of advertisements, like in which the companies, the marketeers are advertising their products, communicating their products information to us, right? So some people think that advertising and marketing are same things. No, marketing is to provide right goods to the right customers at the right time and at the right place. Yes, advertising means to promote, and advertising is a part of marketing, right? Advertising is a part of marketing, a small subset of marketing. As in the start of our lectures, I have told you about a different P's of marketing, the 7 P's of marketing: product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process. So promotion is one principle of marketing, right? And advertising is a part of promotion, means through advertising we promote our product, we provide information to the customers about our product, its features, its prices, right? So now proceeding to our lecture. Okay ji. So what are the objectives of today's lecture? To understand the roles of advertising in the promotion mix, and to know the major decisions involved in developing an advertising program, right? So first of all, I will tell you what is advertising. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. So what are the salient features of advertising? It's a paid form. We have to pay for our advertisements. It's a non-personal presentation, right? And through an identified sponsor. So what are the salient features? It's a paid form of advertising. Advertising is a paid form. Paid form means it's a paid form of communication, that is, the sponsor has to bear the cost of communication with the respondents. For example, if I'm the marketeer and I want to advertise my products, so I have to bear the costs, I have to bear the expenses. Advertising is not free of cost. अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हैं, अगर आप बिल बोर्ड हायर करना चाहते हैं, अगर आप टेलीविजन में, किसी बिजनेस मैगजीन में, थ्रू रेडियो, थ्रू मोबाइल मैसेजेस, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजिंग नहीं होती, ये एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है. ठीक है. नॉन पर्सनल. नॉन पर्सनल का क्या मतलब है? देयर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर. That's why it is referred as non-personal method of promotion. Like when we are watching the advertisement of different products, like सर्फ एक्सेल ले लें, इसके अलावा आप डिफरेंट सोप्स की एग्जांपल ले लें, बॉल्स आइसक्रीम की एग्जांपल ले लें, इसके अलावा अगर आप एग्जांपल ले लें किसी शैम्पू की ले लें, किसी मोबाइल फ़ोन की ले लें, हुवावे की ले लें, इन्फिनिक्स की ले लें, टेलीविज़न पे आप उसके एड्स देखते हैं, अगर आप उसके न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसके बिल बोर्ड्स देखते हैं, ठीक है, रेडियो पे अगर आप देखते हैं, तो उसकी जो मार्केटियर है उसका, और आप जो प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, आप जो कस्टमर हैं, जो प्रोस्पेक्ट हैं, उसका और जो मार्केटियर है उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता. ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. नॉन पर्सनल मीन्स फेस टू फेस वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट सोर्स के थ्रू आपको इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. राइट. ओके जी.
advertising is done through an identified sponsor. Advertising is always undertaken by some identified individuals or company who makes advertising efforts and also bears the cost of undertaking such effort. अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्ट के मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को एक फुल पार्टनरशिप की और एक एग्जांपल दी थी कि फार्मूला 1 की जो कार्स हैं उनकी रेसिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो शेल जो कंपनी है वो उनके फुल पार्टनर्स हैं। ठीक है, फुल पार्टनर्स कैसे हैं कि वो उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, उनको इंजन ऑयल प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं रेसिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा वो लोग उनको टेक्निकल स्टाफ प्रोवाइड करते हैं फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर व्हीकल्स, और इन रिटर्न इनको क्या मिलता है, मींस वो लोग उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उनको क्या होता है कि जो फार्मूला 1 की रेसिंग कार का जो ग्राउंड है वहाँ पे उनके बोर्ड्स हायर किए जाते हैं, शो किए जाते हैं शेल के। ठीक है, ये क्या है, ये शेल की प्रमोशन हो रही है, उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसके लिए उसने कॉस्ट पे की है। ठीक है, और स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाइड होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो स्पॉन्सर उसका आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, ओके जी। एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि बिजनेस जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो अपने आप को एडवर्टाइज करती हैं, क्योंकि उनका पर्पस जो होता है प्रॉफिट जनरेशन होता है। जैसे कि आप डिफरेंट बैंक्स की एग्जांपल ले लें। ठीक है, जेएस बैंक की एग्जांपल ले लें, इसके अलावा समिट बैंक की एग्जांपल ले लें। अगर आप डिफरेंट कंपनीज की ले लेते हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें, वॉल्स कंपनी की आप एग्जांपल ले लें, हुआवे फ़ोन्स की आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो ये तो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो बेसिक पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना है। ये लोग तो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, अपनी सेल्स को हम लोग इंक्रीज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही एडवर्टाइजिंग को यूज़ करेंगे। एडवर्टाइजिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी ख़ुद को प्रमोट करती हैं, वो भी अपने एडवर्टिजमेंट्स देती हैं। वो क्यों देती हैं, इसकी भी मैंने रीजंस आप लोगों को बताई थी कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को इसलिए एडवर्टाइज करती हैं ताकि उनका जो मैसेज है वो जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उन तक कन्वे हो जाए। ठीक है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जनरेट कर सकें। जैसे कि आप शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, आपको मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं, उसके टेलीविज़न पे उसके एड्स आते हैं, बाहर उसके बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हाई की जाती हैं। ठीक है, बिलबोर्ड्स उसके लगे होते हैं, न्यूज़पेपर में उसके एड्स आते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि अपना मैसेज वो जनरल पब्लिक तक कन्वे कर सके कि ये एक कैंसर हॉस्पिटल हमने बिल्ड किया है, इसके लिए आप लोग जेनरसली फंडिंग दें। ठीक है, और ये लोग इसलिए अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं ताकि अपना जो मैसेज है वो पब्लिक तक कन्वे कर सके और डोनेशंस ले सकें। राइट, जैसे कि फातमीद फाउंडेशन है, ठीक है, ईदी सेंटर है, बाहर आप लोगों ने इसके एड्स देखे होंगे। ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है, ये एनजीओज हैं। तो ये क्यों अपने आप को एडवर्टाइज करती हैं, अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, ताकि ये लोग फंड्स जनरेट कर सकें और लोग इनको जेनरसली डोनेट कर सकें। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन आर यूज्ड बाय फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको यूज़ करते हैं, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं। Okay, ji. So what are the major decisions that the marketeer has to take in the advertising? So this is the diagram picture of various decisions that the advertiser has to take uh, in advertising. Objective setting, ऑब्जेक्टिव्स अपना सेट करता है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद अपने बजट डिसीजंस कि एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल अप्रोच है, परसेंट ऑफ सेल्स है, कंपेटिटिव पैरिटी है, ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क है। उसके अलावा जब आपने मैसेज देना है तो क्या मैसेज देना है, ठीक है,
उसके डिसीजंस एडवर्टाइजर टेक करता है, मैसेज क्या आपने कन्वे करना है, और मीडिया आपने कौन सा पिक करना है, किस मीडिया के थ्रू आपने अपना मैसेज कन्वे करना है। उसके अलावा आपका लास्ट स्टेप है कैंपेन इवैल्यूएशन। आप देखते हैं कि आपके कम्युनिकेशन जो इम्पैक्ट है वो क्या है, कस्टमर्स तक, आपके पब्लिक तक आपका कम्युनिकेशन जो आपका मैसेज है वो कम्युनिकेट हो गया है, और उसका सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस ऑल दी स्टेप्स इन डिटेल वन बाय वन, राइट। So number first step is setting the objectives. एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं? एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड बाय प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस उनका क्या है? टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स, टू परसुएड द कस्टमर्स एंड टू रिमाइंड द कस्टमर्स। इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स is done in the introductory stage of your product life cycle. As in the previous lectures we have discussed the product life cycle, first the product is developed, then its introductory stage. इंट्रोडक्टरी स्टेज पे क्या होता है? कस्टमर्स को पता नहीं होता आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, राइट। अगर आप बहुत भी एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं दूसरे कंपैरेटर से, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कस्टमर्स को पता नहीं है कि ऐसा एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये इसके फीचर्स है, ये इसकी प्राइसेस है, तो आपकी प्रोडक्ट को कभी भी वो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसी एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई है, राइट। सो आपने इंट्रोडक्टरी स्टेज पे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, कि ये एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसकी प्राइसिंग है। ठीक है, सो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हमारे एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट योर न्यू प्रोडक्ट, राइट। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू परसुएड द कस्टमर्स। वंस आपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर लिया है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अब कस्टमर्स को पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट पे है, ठीक है, अब आपने कस्टमर्स को परसुएट करना है कि वो आपकी ही प्रोडक्ट परचेज करें, किसी और की प्रोडक्ट परचेज ना करें। ठीक है, आपने तो इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब कस्टमर मार्केट में जाता है तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल कोई से मोबाइल फ़ोन लेने जा रहा है, या फिर कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेने जा रहा है, या फिर कोई डिटर्जेंट लेने जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई लैपटॉप लेने के लिए जा रहा है, तो वो जब मार्केट में जाएगा तो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट पड़ी होंगी, तो वो आपकी प्रोडक्ट को क्यों चूज़ करेगा? आपने अपने एडवर्टिजमेंट के थ्रू आपने उनको मैसेज कन्वे करना है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, उनको परसुएट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसुएडिंग पार्ट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज। कंपटीशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो फिर आपने कस्टमर्स को परसुएट करना होता है कि जी आप हमारी ही प्रोडक्ट लें। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, आपकी जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस है, जो आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, वो आपने कस्टमर्स को कन्वे करने हैं थ्रू योर एडवर्टिजमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग आप करते हैं परसुएट करने के लिए कि हम जो है वो बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट एड्स में देखा होगा कि वो दूसरी प्रोडक्ट की आपको रेफरेंस देते हैं, जैसे कि एरियल का एड आपने देखा है, वो कहते हैं कि महंगे पाउडर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी धुलाई ये देता है। ठीक है, महंगे पाउडर के मुकाबले में बेहतर सफाई देता है। लाइक आपने अगर सर्फ एक्सप्रेस का एड देखा हो तो वो भी साइड पे एक ग्रीन कलर का पैकेट दिखाते हैं, ब्लर होता है ऑब्वियसली, आप डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को अटैक नहीं कर सकते, इट्स अनएथिकल एंड इमोरल, लेकिन आप इनडायरेक्टली अपने एक ग्रीन सा पैकेट दिखा रहे होते हैं जिसको उन्होंने ब्लर किया होता है, कहते हैं कि जी महंगे पाउडर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी धुलाई है। ठीक है, तो आप कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग करते हैं कि जी उनका पाउडर तो बहुत महंगा है, हमारा पाउडर उससे सस्ता है, लेकिन सफाई हम दोनों की सेम है। ठीक है, सफाई हमारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये आप कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, क्यों? परसुएट करने के लिए,
कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए कि जब कस्टमर मार्केट में जाए तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज ना करे बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे, राइट? सो नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू रिमाइंड द कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट. वंस you have informed the customers about your product, you have persuaded the customers about your product, now customers are purchasing your product, your sales are increasing, your profits are maximizing. But the process didn't finished yet. ये नहीं है कि बस आपने परसुएट कर लिया, अब कस्टमर्स मेरी ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, बस का बात खत्म होगी. नो, आपने टाइम टू टाइम कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवाना है कि स्टिल दिस प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, स्टिल दिस प्रोडक्ट इज इन द मार्केट. ठीक है, आपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाना है. दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेच्योर प्रोडक्ट्स, राइट? आपकी सेल्स जो है वो मैक्सिमाइज हो गई हैं, आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो गए हैं, मार्केट जो है वो मेच्योर हो गई है. अब आपने कस्टमर्स को रिमाइंड करना है, जैसे कि आप कोका कोला का या फिर पेप्सी के एड्स देखते हैं, वो मेच्योर प्रोडक्ट्स हैं, सबको पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, बट वो फिर भी टाइम टू टाइम जो है अपने एक ऐसा एडवर्टीजमेंट लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू वो आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवाते हैं. ओके जी, ये जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, टू कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू, बिल्डिंग अ ब्रांड एंड कंपनी इमेज, टेलिंग द मार्केट शेयर अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, ये सारे जो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है, हमने परसुएट करना है टू बिल्ड अ ब्रांड प्रेफरेंस, कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करे. एनकरेजिंग स्विचिंग टू अ ब्रांड, कि वो दूसरी प्रोडक्ट को स्विच करके आपकी प्रोडक्ट की तरफ आ जाए. ये सारे डिफरेंट परसुएडिंग एडवर्टाइजिंग हैं. फिर ये रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग के हैं, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, रिमाइंडिंग कंज्यूमर दैट अ प्रोडक्ट मे बी नीडेड इन द नियर फ्यूचर एटसेट्रा. ये सारे possible advertising objectives हैं. informative advertising, persuasive advertising and reminder advertising. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड डिसीजन है which the marketer has to take when they are advertising their products is setting the budget. obviously आपने बजट को सेट करना है कि कितना बजट होना चाहिए. सो आपका जो बजटिंग है वो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द सेवरल फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग द एडवर्टाइजमेंट बजट. Number one is stage in the product life cycle, where you are standing in the product life cycle, right? ऑब्वियसली जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, अभी आपने न्यूली लॉन्च किया है अपना प्रोडक्ट, ठीक है, किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए. आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू आपने इन्फॉर्म करना है कि अगर वो एक मीडियम पे ऐड ना देखे, अगर वो न्यूज़पेपर नहीं रीड करता तो मैं टेलीविज़न पे देख देता हूँ. अगर वो टेलीविज़न कस्टमर नहीं देखता तो मे बी वो बाहर गुजर रहा हो तो वो कोई बिलबोर्ड देख ले, अब मैं बिलबोर्ड पे कर देता हूँ, ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल मैसेजेस के थ्रू, राइट? सो अगर आप इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हैं तो आपका बजट ज़्यादा होगा. सिमिलरली जैसे जैसे प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अपनी ग्रोथ और फिर मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाती है, उसके बाद डिक्लाइन स्टेज पे, तो ऑब्वियसली डिक्लाइन स्टेज पे फिर आपने अपने सिर्फ लॉयल कस्टमर्स को, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आपने सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करना होता है, तो फिर आपका एडवर्टाइजिंग बजट भी कम हो जाता है. ठीक है, देन द सेकेंड फैक्टर जिसको हमने अपने बजट में कंसिडर करना है इज़ द मार्केट शेयर. अगर आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका एडवर्टाइजिंग आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती. कस्टमर्स को ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, कस्टमर्स ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड हैं, आपने जस्ट कस्टमर्स को टाइम टू टाइम रिमाइंड करना है. लेकिन अगर आपका मार्केट शेयर बहुत कम है, आपने कॉम्पेटिटर से मार्केट शेयर को स्नैच करना है, छीनना है, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, आपकी सेल्स बहुत कम है, आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली आपने अपना बजट को भी ज़्यादा रखना है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी सेल्स कम है, आपकी प्रॉफिट्स कम है, तो आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट करेंगे, एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे. नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है.
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड द मार्केट शेयर एंड द टाइप ऑफ योर प्रोडक्ट. ओके जी. देन लेवल ऑफ कंपटीशन. अगर तो आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपने अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करना है. अपने जो प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है उसकी बेस पे आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से, अपने कस्टमर्स की नज़र में कि जी मेरा प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट से इतना डिफरेंट है तो आप लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज करें, राइट. देन डिग्री ऑफ ब्रांड डिफ्रेंसिएशन. अगर तो आपकी और डिफरेंट ब्रांड्स में डिफ्रेंसिएशन इतनी नहीं है, जैसे कि डिटर्जेंट्स हैं, इतना डिफरेंस नहीं होता लॉन्ड्री जो डिटर्जेंट्स होते हैं. इसके अलावा अगर आप सोप्स की एग्जांपल ले लें, कोई जो है सोप पामोलिव ले लें, लक्स ले लें, ठीक है, तो इतना डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट्स में. दो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट, फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है. जैसे लक्स ने ब्यूटी पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, सेफ गार्ड ने जर्म्स एंटी जर्म पॉलिसी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करें, ठीक है. तो जब प्रोडक्ट में इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता तो आपने उसको अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपने उसको डिस्टिंग्विश करना है दूसरे प्रोडक्ट से. तो उसके लिए अभी ऑब्वियसली आपको अपना बजट को ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है. ओके जी. So number third decision that the advertiser has to take in when they are deciding for the advertising is the developing the advertising strategy. ठीक है, आपने अपने एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना है कि मैसेज क्या कन्वे करना है आपने अपने कस्टमर्स को, और मीडिया कौन सा यूज़ करना है, ठीक है. सो सम क्रिएटिव चैलेंजेस दैट द मार्केटियर फेस आर मीडिया फ्रेगमेंटेशन. जैसे कि मीडिया बहुत डिफरेंट टाइप्स के मीडिया हैं, ठीक है. आप टेलीविज़न के थ्रू भी कर सकते हैं, आप रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू. फिर न्यूज़पेपर में भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर हैं, आपने किस न्यूज़पेपर में करना है. अगर न्यूज़पेपर में करना है तो फिर किस जगह पे करना है, फ्रंट पेज पे करना है, बैक पे करना है, हेडिंग. तो ये मीडिया फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि मीडिया जो है बहुत वास्ट हो गया है, राइट. कोई एक टाइप का मीडिया नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के मीडिया है. सो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मीडियम आपने करना है, ठीक है. इंटरनेट है, मोबाइल मैसेजेस हैं, वेबसाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं. अब जैसे कि एक न्यू ऐप लॉन्च हुआ है टिकटॉक, उसमें भी वो लोग डिफरेंट टिकटॉकर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं. बिल बोर्ड्स हैं, ठीक है. इसके अलावा ट्रांजिट एड्स हैं, बसेस की जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है उसकी बैक पे लगे होते हैं, जो टैक्सीज होती हैं, रिक्शाज होते हैं, उनकी बैक साइड पे लगे होते हैं. इसके अलावा एयर एड्स होते हैं, एरोप्लेन के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू हवा से आपको वो डिफरेंट पैम्फलेट्स देते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को. सो मीडिया फ्रेगमेंटेशन बहुत वास्ट है, ये एक चैलेंज है. इसके अलावा सोरिंग मीडिया कॉस्ट, जो मीडिया की जो कॉस्ट हैं वो बहुत इंक्रीज हो रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. मार्केटिंग का ज़माना है, ठीक है. सो एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी एक चैलेंज है. इसके अलावा एडवर्टाइजिंग क्लटर भी एक चैलेंज है कि कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो कस्टमर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेट हो जाता है. जैसे कि 30 मिनट्स का अगर टीवी शो है तो उसमें 20 मिनट्स के एड्स होते हैं, बार 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 एक ही एड आपको दिखाया जाता है, तो आप तंग आके टेलीविज़न ही बंद कर देते हो कि ये तो प्रोग्राम इसमें है ही नहीं, इसमें तो सब के सब एड्स हैं. या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो बीच में एक ऐड आ जाता है और वो ऐड को हम स्किप भी नहीं कर सकते. फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर द फर्स्ट 20 to 30 सेकेंड्स आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है. आपने लाजमी उस ऐड को देखना है, और अगर ज़रूरी है वो वीडियो, अपने कोई स्टडी रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपने उस एडवर्टाइजमेंट को लाजमी देखना है. लेकिन अगर कोई आप लोग जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वीडियो देख रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग वीडियो ही बंद कर देते हैं कि ये इतना बड़ा ऐड कौन देखेगा. सो एडवर्टाइजिंग क्लटर क्या है कि एक ही ऐड ज़बरदस्ती बार बार आप कस्टमर्स को दिखाते हैं तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है, ठीक है.
ये भी एक चैलेंज है कि फिर इसको एडवर्टाइजर्स ने किस तरह से ओवरकम करना है कि कस्टमर जो है आपका ऐड देखना ही नहीं चाहते, या वो प्रोग्राम ही क्लोज कर देते हैं, या कस्टमर इरिटेट हो जाता है आपके ऐड से। ओके जी, डिफरेंट ऐड मैसेजेस हैं कि आपने क्या मैसेज कन्वे करना है, मैसेज स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। समथिंग क्रिएटिव आपने लेकर आना है, वो विजुअल भी हो सकता है, वो कोई मीन्स पिक्चर वगैरह, कोई वीडियो भी हो सकती है, वो कोई फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दाग तो अच्छे होते हैं, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट आपने लेकर आना है अपने कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील्स हैं जो कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल मतलब आपने अपने प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में शो करने हैं। जैसे कि आप अगर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप लक्स सोप की एग्जांपल ले लें, तो वो क्या कहते हैं। ओके जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस हमने डिस्कस किए कि मीडिया फ्रेगमेंटेशन है। मीडिया फ्रेगमेंटेशन मतलब मीडिया की डिफरेंट टाइप्स लॉन्च हो रही हैं। आपके कोई एक मीडिया नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये वीडियो इंटरनेट बीच में चला गया था, तो मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। अगर ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है तो प्लीज़ इसको स्किप कर दें, लेकिन आई थिंक ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई, यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। जूम की रिकॉर्डिंग आई थिंक नहीं हुई, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सोरिंग मीडिया कॉस्ट क्या है कि मीडिया की कॉस्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। एडवर्टाइजिंग क्लटर क्या है कि आपकी जब एक ऐड को बार बार कस्टमर्स को बम्बार्ड करते हैं, डिफरेंट सेम ऐड को डिफरेंट टाइम्स या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो कस्टमर्स जो हैं वो आपके ऐड को इग्नोर कर देते हैं। कस्टमर इरिटेट हो जाता है, तंग हो जाता है वो आपके ऐड से, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने मैसेज को जब क्रिएट करने तो क्या मैसेज आपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो विजुअल भी हो सकता है, वीडियो ऑडियो भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है, या बोथ भी हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील्स है। अपील शुड बी मीनिंगफुल, मीन्स आपने अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को शो करना है अपने एडवर्टीजमेंट में। लाइक अगर आप एग्जांपल ले लें, एरियल की ले लें, तो वो किसकी उनके एडवर्टीजमेंट में अपने बेनिफिट्स को क्या बताते हैं कि जी ये लोग बहुत अच्छी सफाई करते हैं। इनफैक्ट वो लोग कंपैरिजन करते हैं, 2 डिफरेंट डिटर्जेंट्स को लेते हैं, उनको वॉश करते हैं, उसको दाग लगाते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, तो कहते हैं कि जी ये देखें हम कितनी अच्छी धुलाई इसने की है, साफ धुलाई की है, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसको आपने अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाना है। एडवर्टाइजमेंट शुड बी बिलीवेबल, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने चीज़ नहीं बता देनी कि जी फॉर एग्जांपल आप मेरा ये वाला शैम्पू आप लोग यूज़ करेंगे तो आपके 1 वीक में आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है। या अगर आप ये क्रीम यूज़ करेंगे तो 5 डेज़ में आप जो हैं बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, ठीक है, गोरे हो जाएंगे, आपकी स्किन फेयर हो जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट शुड बी बिलीवेबल, राइट। अगर वो आप कुछ इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झूठ दिखाएंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट परचेज तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन वन टाइम वो परचेज करेगा, उसके बाद वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने माइंड में आपकी एडवर्टीजमेंट को देख के जो एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई थी कि जी मैं 5 डेज में यूज़ करूंगा, मैं बहुत फेयर हो जाऊंगा, लेकिन जब वो 5 डेज में फेयर नहीं होता, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं करती, तो वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। जब उसकी एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस मैच करेंगी तभी वो सेटिस्फाई होगा। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर जाती है, तो कस्टमर जो है वो हाईली सेटिस्फाई होगा, लॉयल कस्टमर होगा, हैप्पी कस्टमर होगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा कि ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की थी, इसके तो ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप लोग भी परचेज़ करो, ठीक है। एड शुड बी डिस्टिंक्टिव, दूसरा एड से डिफरेंट होना चाहिए आपका एड, ठीक है। इसके अलावा मैसेज एग्जीक्यूशन स्टाइल क्या होना चाहिए, टोन,
अगर तो आप ऐसा मीडियम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि रेडियो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी नज़र नहीं आ रही, आपका फेस, आपकी ड्रेसिंग नज़र नहीं आ रही, आपकी बैकग्राउंड इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वहाँ पे आपका टोन मैटर करता है। तो इस केस में आपका टोन ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर्स को परसुएट कर सके। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई वर्बल ऐड दे रहे हैं, बिल बोर्ड दे रहे हैं, या न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, या कोई बिजनेस मैगजीन में दे रहे हैं, तो फॉर्मेट उसका कैसा होना चाहिए, ठीक है। इलिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी हेडलाइंस कैसी होनी चाहिए। सो ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज कन्वे करने के मेथड्स आप लोगों को बताए थे लास्ट लेक्चर्स में। सो क्विकली हम लोग गो थ्रू करेंगे इससे कि फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है अपने टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। फिर आपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अपने आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। ये आपका है बाय रेडनेस स्टेज है। अवेयर करना है कस्टमर्स को, नॉलेज प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, देन उनको लाइकिंग क्रिएट करनी है, प्रेफर करें वो आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स में, देन कन्विक्शन, एंड देन फाइनली वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी। यहाँ पे इसको ऐड करने का मतलब यही है कि आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करें कि वो कम्युनिकेशन और मैसेज कम्युनिकेशन किस तरह से आपस में लिंक करें आप लोग। मैसेज फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसके अलावा मीडिया आपने कैसा चूज़ करना है, इसके अलावा बज़ मार्केटिंग क्या है। आप लोग डिफरेंट ओपिनियन लीडर्स के थ्रू अपने आप को, सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाते हैं। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं, मेजर मीडिया टाइप्स हैं, प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, डिस्प्ले मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया है, ठीक है। मैं क्विकली इससे इसलिए जा रही हूँ कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ओके जी, सिलेक्टिंग द मैसेज सोर्स है। इसके अलावा फिर फाइनली हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। डिफरेंट एग्जीक्यूशन स्टाइल्स हैं हमारे पास, लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ है। स्लाइस ऑफ लाइफ में आप क्या करते हैं कि आप कोई डेली जो रूटीन के जो लोग होते हैं उनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाते हैं। लाइक कोई फादर या डॉटर को दिखाते हैं, आप उनके रिलेशनशिप को दिखाते हैं कि जी। इसके अलावा आप डिफरेंट, अगर कॉफ़ी का ऐड है तो आप कोई ऑफिस दिखाते हैं, ठीक है। जो कॉमनली जो डेली रूटीन के लोग हैं उनके थ्रू आप अपने उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। जैसे कि दो कुलीग्स हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो लोग काम करके वो लोग थक गए हैं, तो वो कहते हैं कि नेस्कैफ़े कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, ठीक है। उसका जो स्लोगन है वो क्या है, जागते तो रहना है, ठीक है। तो स्लाइस ऑफ लाइफ में आप जो डिफरेंट डेली रूटीन लाइफ के जो इवेंट्स है उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक के थ्रू आप करते हैं। डिफरेंट एड्स हैं जिसमें म्यूज़िक को उन्होंने ऐड किया होता है। जैसे कि गाला का ऐड है, उसमें वो लोग बताते हैं मेरे देश का बिस्किट गाला, मेरे देश का बिस्किट गाला। वो इतना रिपीट करते हैं कि वो म्यूज़िक आपको मेमोराइज हो जाता है। अब तो फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जा रहे हैं और आपको बिस्किट का नेम याद नहीं आ रहा, तो आप उस ऐड के थ्रू, उस म्यूज़िक के थ्रू उसको याद कर सकते हैं। तो डिफरेंट म्यूज़िक के थ्रू भी आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। ओके जी, लाइफस्टाइल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें एग्जांपल, माउंटेन ड्यू की एग्जांपल ले लें। उसमें किस टाइप के लाइफस्टाइल को वो लोग यूज़ करते हैं, थ्रिलर टाइप का। यंग बॉय है, बॉयज़ को यूज़ करते हैं, उन्होंने हैवी बाइक्स ली होती हैं, कोई स्टंट्स दिखा रहे होते हैं, तो वो कोई थ्रिलर सी एनर्जेटिक टाइप के लाइफस्टाइल को वो लोग उसमें दिखाते हैं, ठीक है। मूड और इमेज के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट है या फिर कोई टूरिस्ट स्पॉट है उसको दिखा रहे हैं, तो वो कोई आपको उसी टाइप की कोई सीनरी वगैरह दिखाएंगे, कोई इमेजेस दिखाएंगे। या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वो लोग फादर और डॉटर है उसके लव को दिखाते हैं। जैसे कि मोल्टी फोम का आई थिंक ऐड था, जिसमें उसकी बेटी की शादी हो रही होती है, ठीक है।
तो ये क्या है, आपका मूड को चेंज कर देते हैं, सेंटिमेंटल आपका मूड हो जाता है, फादर डॉटर के जो लविंग बॉन्ड है उसको दिखाया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू वो लोग अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी सिंबल के थ्रू वो लोग करते हैं। वो पर्सनालिटी सिंबल कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, वो कोई कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि सेफ गार्ड के ऐड में उन्होंने सेफ गार्ड को किससे सिंबल किया हुआ है, किस पर्सनालिटी से, कमांडर सेफ गार्ड से। कमांडर सेफ गार्ड से इस तरह किया हुआ है कि जी कमांडर सेफ गार्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत पावरफुल है, वो जर्म्स का सफाया करता है, वो आपको जो है बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी, कमांडर सेफ गार्ड की जो पर्सनालिटी है उसके थ्रू वो लोग अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निकल एक्सपर्टीज के थ्रू, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में आपको दिखाते हैं कि जी हम लोग किस, फॉर एग्जांपल जो मिल्क पैक का ऐड है तो वो आपको दिखाते हैं कि हम लोग जी टेट्रा पैकेजिंग करते हैं, और बहुत जो हमारा स्टाफ है वो बहुत टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है। सो आप लोग अपने जो डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उसके थ्रू आप लोग अपना दिखाते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि मिल्क पैक जो है वो दूध फार्म से कलेक्ट करता है, उसके अलावा हार्मोन्स इंजेक्शंस हम लोग नहीं लगाते, ठीक है। तो वो लोग अपनी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे दिखाते हैं। इसके अलावा आप साइंटिफिक एविडेंस देते हैं अपने एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट के ऐड में दिखाते हैं कि जी ये एंटी कैविटी टूथपेस्ट है, एक डॉक्टर को शो करते हैं जो कि साइंटिफिकली माइक्रोस्कोप से प्रूफ करता है कि अगर आप लोग ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो आपको कैविटीज़ नहीं होंगी। अगर आप लोग ये सेफगार्ड साबुन यूज़ करेंगे तो वो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाते हैं कि जी, हैंड्स दिखाते हैं, कोई साइंटिस्ट होता है उसने गाउन पहना होता है या डॉक्टर होता है उसके थ्रू आपको दिखाते हैं कि जी हैंड से जरासीम जो है वो 99.9% जो है वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेस्टिमोनियल एविडेंस या एंडोर्समेंट के थ्रू करते हैं, किसी सेलिब्रिटी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, लाइक आयज़ा खान को आप लोग ले लेते हैं, या फिर वसीम अकरम को आप लोग अपने एरियल के ऐड में ले लेते हैं, और उसके थ्रू आप लोग इंडोर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स के ऊपर कि वो आपकी प्रोडक्ट्स परचेज करें, राइट। सो ये डिफरेंट क्रिएटिव एग्जीक्यूशन स्टाइल्स थे। ओके जी, ये हमने डिफरेंट मैसेजेस के मेथड्स पढ़े। अब मीडिया आपने कैसे सिलेक्ट करना है। डिसाइड ऑन द लेवल ऑफ रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। रीच का मतलब है कि आपने कितने कस्टमर्स को आपने रीच करना है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रीच करना है तो ऑब्वियसली फिर आप उसके बिल बोर्ड का ऐड नहीं देंगे, क्योंकि बिल बोर्ड फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सिटी रोड पे लगाया तो उसको कितने लोग देखेंगे। ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरेगा, जो सिटी साइड के हैं, जो सदर साइड के हैं, जो इस साइड पे आते ही नहीं है, तो वो कैसे देखेंगे। अगर आपने ज़्यादा लोगों को रीच करना है तो फिर आप कोई ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जो ज़्यादा लोग देख सकें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, आपने एक टाइम में कितने लोगों को आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर है आपका कि किस मीडिया का क्या इम्पैक्ट है कस्टमर्स के ऊपर, राइट। ओके, चूजिंग अमंग द मेजर मीडिया टाइप्स ऑफ कंसिडरिंग कंज्यूमर मीडिया हैबिट्स। कंज्यूमर के हैबिट्स क्या हैं। ऑब्वियसली अगर आपने कोई व्हीकल का ऐड देना है, जैसे कि आपने न्यू कोई किया की कार्स लॉन्च हुई हैं, तो आप उसके एडवर्टाइजमेंट रेडियो के थ्रू नहीं देंगे, आप उसके किसी बिजनेस मैगजीन में देंगे, या फिर उसको टेलीविज़न के थ्रू देंगे, ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर तो कोई टेक्निकल टाइप की प्रोडक्ट है, राइट, टेक्निकल टाइप की प्रोडक्ट है तो फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप टेलीविज़न का मीडियम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप बिल बोर्ड पे सिर्फ उसकी एक पिक्चर देख के और नीचे उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस बता के आप फारिग नहीं हो जाएंगे। आपने उसकी टेक्निकल प्रोडक्ट है तो आपने एक्सप्लेन करना है उसको, टेलीविज़न एड्स के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है, या फिर आप किसी बिजनेस मैगजीन में उसको ऐड देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैसेजेस, किस टाइप का मैसेज है। अगर तो जे डॉट पे सेल लगी है, ठीक है, तो वो ऐसी है कि आप उसको मोबाइल पे मैसेजेस लोगों के भिजवा देंगे। यूफोन कंपनी के साथ या फिर डिफरेंट कंपनीज हैं उनके साथ आप लोग करके आप लोग मैसेजेस प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पे दे देंगे जी 50% ऑफ है, 15% ऑफ है, ठीक है। सो टाइप ऑफ मैसेजेस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की मैसेज आपने कन्वे करना है। इसके अलावा अगर
आपने कोई डाइवर्सिफिकेशन की है, अपनी कोई रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की है या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की है, तो आपने अपने कस्टमर्स को उसकी डिटेल्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में बताना है, तो फिर आप टेलीविज़न का मीडियम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप न्यूज़पेपर्स का मीडियम यूज़ करेंगे, आप रेडियो का मीडियम यूज़ करेंगे। सो टाइप ऑफ मैसेजेस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मैसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। देन कॉस्ट पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, अगर एक मीडियम की कॉस्ट बहुत हाई है, उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फिर दूसरे मीडियम पे चले जाएंगे। देन सिलेक्ट स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल्स। मीडिया व्हीकल्स आपने सिलेक्ट करने हैं। अगर तो आपने टेलीविज़न पे दिखाना है, ठीक है, तो टेलीविज़न पे आपने दिखाना है, तो आपने रात को जो 9 PM की न्यूज़ होती हैं उसमें दिखाना है, प्राइम टाइम में दिखाना है, उसके मिड में दिखाना है, उसके स्टार्ट में दिखाना है, या किसी डॉक्यूमेंट्री के दरमियान दिखाना है, किसी ड्रामे के दरमियान दिखाना है, ठीक है। किसी अगर आपने यूट्यूब पे देना है तो फिर किस व्हीकल पे देना है, अगर आपने न्यूज़पेपर पे देना है तो फिर किस न्यूज़पेपर में देना है, आज न्यूज़ में देना है, डॉन न्यूज़ में देना है, ठीक है। तो व्हीकल आपका क्या होना चाहिए। देन आपने डिसाइड ऑन द मीडिया टाइमिंग, किस टाइमिंग में आपने देना है, ठीक है। लाइक अगर आपकी एस की प्रोडक्ट्स हैं तो उनका सर्दियों में एज सच कोई रेफ्रिजरेटर का काम नहीं होता, तो आप गर्मियों के स्टार्ट में उसका एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दें, गर्मियों में आप लोग उसको करें, लेकिन सर्दियों में भी आपने टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड करवाना है। तो फॉर एग्जांपल आप नवंबर दिसंबर में देना चाहते हैं, नवंबर दिसंबर में आप उस पर कोई ऑफ लगाना चाहते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये टाइमिंग्स आपने डिसाइड करनी है स्पेसिफिकली अपनी मीडिया की। ओके जी, तो ये डिफरेंट टेलीविज़न डिफरेंट मीडियम्स हैं एडवर्टाइजमेंट के। टेलीविज़न है, ऑनलाइन है, न्यूज़पेपर है, डायरेक्ट मेल है, मैगजीन्स है, रेडियो है, आउटडोर है, ये उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं हर मीडियम के, और ये सर्टेन उसकी लिमिटेशंस हैं। मेजर मीडिया टाइप्स हमारे पास क्या हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन्स हैं, डायरेक्ट मेल्स हैं, रेडियो है, मैगजीन है, आउटडोर है और इंटरनेट है। इसके अलावा इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ठीक है, मेजरिंग कम्युनिकेशन इफेक्ट्स के उसका इफेक्ट क्या हुआ है। हमारे कस्टमर्स को हमने एडवर्टीजमेंट दी है, अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ है हमारे कस्टमर्स के ऊपर। कॉपी टेस्टिंग क्या है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करने से पहले ही एक कोई शॉर्ट सा एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि कस्टमर्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट से को की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्या वो उसको परचेज करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है आप लोग वाइड स्केल पे अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इफेक्ट्स क्या हुए हैं, हमें कुछ रिसीव हुए हैं, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हुई है, प्रोडक्ट की नॉलेज कस्टमर्स तक कन्वे हुई है, प्रोडक्ट की प्रेफरेंस, क्या कस्टमर ने दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर हमारी प्रोडक्ट को प्रेफर किया है। ये हमारे पास कम्युनिकेशन इफेक्ट्स। उसके बाद हमारे सेल्स इफेक्ट हैं कि जो हमने एडवर्टीजमेंट की है उसका सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। हम अपनी पास्ट सेल्स को और अपनी करंट सेल्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि हमारी जो पास्ट सेल्स थी वो ये थी, हमने एडवर्टाइज किया अपनी प्रोडक्ट, और हमारी करंट सेल्स ये हैं, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हमारी एडवर्टीजमेंट का। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, राइट। सो ये एडवर्टीजमेंट का टॉपिक था। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसमें। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप लोग ग्रुप में मेरे साथ मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग क्वेरी के थ्रू या मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर अटेंशन एंड फॉर लिसनिंग द लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।